Everyone, good morning, everyone. Hello, hello. Good morning. Happy Mother's Day. Oh, happy Mother's Day to you as well. Good You, morning. good morning. Good morning, Sangeeta. Good morning, Vikrant. Good How? Is there any morning. distraction in my background or anything that is not visible here? नहीं, perfectly fine. क्या Okay. हालचाल सबके? How was the week? Unbeatable. Hmm, great. Camera, video on, please. Vikrant, Sangeeta, video on. Good. Sangeeta, are you there? कॉफी लेने की होगी. नहीं, कॉफी नहीं लेने गई हूँ, मम्मी को दवाई दे रही हूँ, 2 मिनट दीजिए। ओके सो कैसा रहा पिछला हफ्ता? कैसा था? डू यू हैव एनी शेयर्स टू मेक एनीथिंग विच यू मे बी कॉन्शियसली आइडेंटिफाइड कि हाँ ये मेरे पैटर्न्स हैं, दिस आई नीड टू वर्क ऑन, और मे बी कोई पैटर्न्स आपने तोड़े हो एज इफ बिकॉज नाउ यू आर कॉन्शियस कि ये पैटर्न्स हमें नुकसान दे रहे हैं, इसीलिए now you have maybe taken control of it. अगर ऐसा कुछ भी है, I want some shares first. Any good news in the life is most welcome. So please go ahead. Hello. Yes, you are audible. Yes, there were many moments, many times when I was aware or reflect किया कि यार that situation is arriving. Now I have to respond, not react. And then was some moment of rushes that I had controlled. So yes, it was good. हमने we thought before speaking. We paused. So that was the biggest achievement of last week. Baki, I could not practice much because there were many engagements, family functions and all. बाकी yes, वो था कि thought process चल रहा था कि these things are happening and we don't have to lose control. Right. बहुत बढ़िया. And anything which you are not able to do, just don't give it a lot of energy कि अरे मैं ये नहीं कर पाया या नहीं कर पा रहा. ठीक है, ऑन द फ्लो चलने दो. बस कॉन्शियस ये रहना है कि इफ वी कैन इंक्लूड इट, इट इज ओके. इफ वी आर नॉट एबल टू इनकॉर्पोरेट समथिंग इन दी लाइफ, कोई बात नहीं, उसको फिर उसको ज्यादा एनर्जी और ज्यादा थॉट नहीं देना है. एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, मोर डीपर, how to control our emotions. Monica, do you have anything to share? Sangeeta, do you have anything to share? I've been mostly in travel in this last 1 week. And no negativity was the only thing. Like while traveling, also, if somebody complaining and everything, you immediately snap back to the fact that people are complaining about train and the luggage and small little things which they can avoid instead of enjoying the journey with their family and stuff. I noticed a lot of people are always complaining when they're with their family, just throwing their weight around. So, yeah, getting there to a very peaceful space is what I did. And the mirror talking is what I did. I don't think negative things of the jar exercise I could not do for obvious No, reasons. no issues. So initial kuch weeks, like now today we are in the third week, so third session rather, 2 weeks have already passed. So these initial weeks are more about being aware about where you are. So if you are just aware, वो if you have spoken something और उसके बाद भी awareness आ गई करे ये गलत हो गया, it is perfectly fine. At least हम aware तो हो रहे हैं. अभी तक तो क्या था, हम अवेयरनेस में ही नहीं थे कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग एंड व्हाट इज गोइंग राइट. नाउ एटलीस्ट वी आर इन अवेयरनेस ऑफ वेयर वी कुड हैव डन समथिंग बेटर. और आज हमें पता चल गया है दैट वी कुड हैव डन समथिंग बेटर, नेक्स्ट टाइम हम कर लेंगे.
So just don't beat yourself up whenever you are not able to do something. Maybe event होने के बाद, react करने के बाद याद आए कि अरे respond करना चाहिए था. Congratulate yourself कि एटलीस्ट उसके बाद तो समझ में आ गया. देयर आर पीपल जिनकी लाइव्स खराब हो जाती है, डिवोर्स हो जाते हैं, शादियां खत्म हो जाती हैं, नौकरियां छूट जाती हैं, प्रमोशंस नहीं मिलते, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट दे आर डूइंग रॉन्ग. So just congratulate yourself. Congratulations to each one of you. Big, big, big congratulations. Sangeeta, do you have anything to share? सब ठीक है मैम, बस इतना ही. Okay. मम्मी बढ़िया है? हाँ हाँ, सब बढ़िया. अब इतना यही सीख लिया ना आपसे, हम्म. पहले भी था और सीख लिया. Good. Okay. So just let's jump into today's session. Today's session is about mastering your emotions. How do you master your emotions? So it is a very, very, very important session, I would say, because everything is in your life is about creating emotional experiences. You set your goals because you want to experience that thing, that emotion. जब आप गोल अचीव करोगे तो क्या इमोशन आएगा? So everything in life is about creating emotional experiences. Whether you create a goal, whether you take any actions, whether you are just walking towards your goals, every step of yours is to create those positive emotional experiences, I would say. Having said that, I also want you to understand that emotions are neither positive nor negative. Emotions are neither negative nor positive. Because a lot of times we say, अरे बहुत ही negative emotion है, बहुत ही negative. Emotion negative नहीं है. Emotion is a feedback to you. Right? हमारा जो ब्रेन है वो उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है? हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है हमें सेफ गार्ड करना, राइट? हमें सेफ रखना. सो आवर माइंड क्रिएट्स दोज एक्सपीरियंसेस. जब हमें नेगेटिव फील होता है तो हम एक स्टेप बैक करते हैं, और वो जो स्टेप बैक हम करते हैं, एक्चुअली वी आर सेफ गार्डिंग आवरसेल्फ फ्रॉम समथिंग. जब हमें रोना आ रहा है, जब हमें दुख हो रहा है, it is a feedback to us that it was something which could have been maybe avoided. So अभी ये negative लग रहा है emotion, but actually उसका purpose is always a positive. What meaning do you attach with the emotion is something that creates. So negative emotions, or and for that matter, I would ask you, I would suggest you, and I would urge you, especially Vikrant, because being the male in a family, in a society like India, a lot of times males are not allowed to express their emotions. And because they are not allowed to express their emotions, slowly but surely, they just stop feeling those emotions as well. कि वो दुख, वो तकलीफ, वो इनसिक्योरिटी, वो फील भी होती है क्या? So feeling all the emotions, and I don't know whether you want to express it or not, that is a very personal thing. But yes, feeling the emotion is very important. Unless you feel the emotion, unless you name the emotion, how would you control it? जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी, when your emotions are high, your intelligence is low. Whether it is a positive emotion, whether it is a negative emotion, whenever your emotion is high, your intelligence is low. So बहुत हाई इमोशन पॉजिटिव भी है, जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, हम बहुत खुश हैं, इलेटेड हैं, एक्साइटेड हैं, उसमें भी डिसीजन मेकिंग करोगे तो वो भी गलत होती है. और बहुत दुखी मन में भी डिसीजन मेकिंग करोगे, दुखी इमोशन के साथ, बहुत एंगर के साथ में डिसीजन मेकिंग करोगे तो वो भी गलत होती है. So we need to understand what these emotions are telling us, what feedback these emotions are giving to us. So if we are not I would say, if we are not able to create the right set of emotional experiences, no matter how hard we work, हम कितना भी मुश्किल, कितना भी मेहनत कर लेंगे ना,
we will not be able to create that empowering belief, empowering being of ourselves, if we are not able to create the right set of emotions. कितनी भी मेहनत कर लें, कहीं भी पहुंच जाएं, वो empowerment फील नहीं होगा, वो being फील नहीं होगी. We are talking about alignment, right? हम जब अपने इमोशंस को अलाइन करते हैं, when they are aligned with our core values, we are most aligned in life. और जैसे जैसे हम अपने इमोशंस, अपनी कोर सिस्टम से दूर होते चले जाते हैं, जो मेरा बेसिक है, कोर है, उससे मैं जैसे जैसे दूर होंगी, मेरे इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट होंगे. जैसे जैसे मैं अपने कोर से दूर ड्रिफ्ट अपार्ट होंगी, वैसे वैसे इमोशंस में बहुत डिस्टर्बेंस आएगा. So you are always advised, maybe you objective of life is to bring yourself back towards your core. तो emotions feedback किस बात का है? That you are drifting away from your core. इस बात का feedback है emotion. इसीलिए emotion कभी भी positive या negative नहीं है. वो आपको बता रहा है आप दूर जा रहे हो अपने core से. It is a good news for you कि अब आपको पता तो है. अदरवाइज तो आप दूर चले जाओगे 100 किलोमीटर, उसके बाद में समझ में आएगा कि अरे कुछ गड़बड़ हो गया. Are you with me? Yes. Okay. Achha, now I want you to write down, to make a list of any emotion जो आपको लगता है, not emotion rather, I would say कोई ऐसा एक आध इवेंट, 1 2 3 4 इवेंट्स की लिस्ट बनाओ जो आपको लगते हैं कि जो नेगेटिव इवेंट्स ऑफ लाइफ. 1 2 3 4 इवेंट्स की लिस्ट लिखो. एक भी बहुत है, एक से ज्यादा है तो अच्छा, मतलब अच्छा तो नहीं है, एक से ज्यादा है तो इट इज गुड दैट यू आर अवेयर that you have labeled as negative events of life. And write done in the chat box when we are done. Okay. Good. So now we are understanding how do we create our emotions. We are the ones who create our emotions. No one else. Because let me give you an example. अभी कितना दिन हुआ वॉर शुरू हुआ? वॉर शुरू हो गई दुनिया में नहीं, इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर शुरू हो गई. सो देर आर पीपल जो जैसी वॉर शुरू हो गई, जिन्होंने क्रिप करना शुरू कर दिया कि अरे ये गलत हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये वैसा हो रहा है. सम पीपल हैव स्टार्टेड वरीइंग अबाउट कि अब क्या होगा, मेरा लाइफ में क्या होगा, बॉम्ब कहीं मेरे घर पे ही तो नहीं गिर जाएगा. सम पीपल हैव जस्ट चेंज द चैनल, जहां न्यूज आ रही थी और वो फिल्म देखना शुरू कर दी उन्होंने. कुछ लोगों की लाइफ में कुछ भी असर नहीं पड़ा, कुछ लोगों ने प्रे करना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दिया, और कुछ लोग चले गए इंदौर के लिए कॉन्सर्ट देखने के लिए, जो कॉन्सर्ट फाइनली फिर कैंसिल हो गया वहां पे, सितार का, सितार फॉर मेंटल पीस. सो everyone has reacted to the same situation differently. So that means that no event or no fact defines how you feel. क्योंकि वो इवेंट तो सेम ही था ना सबके लिए, लेकिन सबका फीलिंग, सबका इमोशन, सबका रिएक्शन उसमें डिफरेंट था, राइट? सो एक ट्राइंगल बनाओ अपने उसमें नोटपैड में. ट्राइंगल, ट्राइंगल में ऊपर लिखना है टी, जो ऊपर वाला एज है इस पे एंगल पे लिखो टी. एक एंगल पे लिखो ई, चाय बना रहे हैं. एक एंगल पे लिखो ई और थर्ड एंगल पे लिख लो ए. सो इट इज, ये ट्राइंगल भी बना सकते हैं इसको हम, वो भी बना सकते हैं, साइकिल भी बना सकते हैं, लेकिन ट्राइंगल इज गुड. इट इज नोन एज
thought, emotion, and action. Thought, emotion, and action. Any emotion that you are feeling is basically the outcome of your thought. Any emotion that you are feeling is the outcome of your thought. The thought which you are giving energy to. The thought which you are giving energy to. Do you know हम एक दिन में कितने thoughts हमारे दिमाग में आते हैं? Anybody? Do you know how many thoughts do we experience in a day? किसी को पता है क्या? Chat box में लिखो कितने आते हैं. If you know this. No? एक दिन में हम 60,000 thoughts को experience करते हैं. Average person experiences around 60,000 thoughts in a day. क्या वो सारे सही होते हैं? No. क्या वो सारे गलत होते हैं? No. लेकिन हम किसको एनर्जी देते हैं? That defines our reality. हम किसको एनर्जी देते हैं? That defines our energy. Our emotions are the outcome of the processing of a particular thought. Let me give you an example here. पता नहीं ये एग्जाम्पल मैं इतनी बार दे चुकी हूँ क्लासेस में कि I get confused whether I have given the example in the same class or same set of people, but still. मैं एक पार्टी में जाती हूँ जहां पे मेरी एक फ्रेंड है, दूर मुझे दिख रही है, वो डांस कर रही है जोर जोर से और मैं यहां से उसको वेव करती हूँ और जैसे ही मैं वेव करती हूँ वो फ्लिप कर जाती है, पलट जाती है और वो आगे कहीं चली जाती है. दिस इज द इवेंट विच हैज हैपेंड. इवेंट क्या है? मैंने वेव किया, वो पलट के चली गई. नाउ कम्स द थॉट. थॉट अब मेरे दिमाग में क्या है? ज्यादा समझती है अपने आप को, पैसे वाली हो गई है और पहले जब काम पड़ता था तो कैसे आती थी आगे आगे, ब्ला 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 ब्ला. इमोशन क्या क्रिएट हुआ? रिजेक्शन का इमोशन क्रिएट हुआ, सैडनेस का इमोशन क्रिएट हुआ, मे बी सम अदर अ लॉट ऑफ नेगेटिव इमोशंस सो टू से, ये क्रिएट हुए. एक्शन क्या होगा? मैं भी नहीं बात कर रही. थॉट, इमोशन, एक्शन. एक्शन के बाद अगेन थॉट. मैं भी नहीं बात कर रही के बाद में फिर थॉट. अब समझ में आएगा. इमोशन बदलेगा, एक्शन अब देखती हूं क्या करना है. विशेष साइकिल में फंस गए हम. राइट नाउ फैक्ट रिमेन दी सेम. मैंने वेव किया, वो पलट के चली गई. थॉट, आज भी चश्मा नहीं पहना. अब इमोशन क्या आया? बेचारी, age, she is aging and she is not able to accept that she is aging, इसीलिए वो चश्मा नहीं पहन रही. एक्शन क्या होगा? आई विल गो टू हर, पैट करूंगी. देखा नहीं क्या? एवरीथिंग चेंज्ड. अब थॉट क्या होगा? अब देखा नहीं क्या के बाद में ऑब्वियसली जब देखा नहीं क्या, अरे एक्चुअली आई डिड नॉट सी यू. मतलब एक्चुअली अगर वो जान के भी पलटी होगी, निग्लेक्ट करने के लिए भी पलटी होगी, लेकिन जब आप जाके बोल दोगे अरे देखा नहीं क्या, चश्मा क्यों नहीं पहन के आई, नाउ शी इज सो एम्बैरेस्ड. इफ एट ऑल, मतलब अगर अजम्पशन ही करना है, अगर मैं अजम्पशन अभी कर रही हूं, इफ एट ऑल वो इसीलिए ही पलटी कि आपको निग्लेक्ट करना चाहती थी, आपको देखना नहीं चाहती थी, तो भी अब वो शी इज सो एम्बैरेस्ड, शी विल से हाँ यार आज भी भूल गई मैं चश्मा पहनना. आपका थॉट क्या आया? देखो आई जस्ट सेव्ड हर. इमोशन क्या आया? हैप्पीनेस का इमोशन आया, एक्सेप्टेंस का इमोशन आया. नाउ अगेन दिस इज अ साइकिल, थॉट, इमोशन, एक्शन. इसी साइकिल को हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, इसी साइकिल को हम पॉजिटिव भी बना सकते हैं. बोथ द थिंग्स डिपेंड ऑन आवर पर्सपेक्टिव, रादर आवर अप्रोच. सो नाउ क्या हम अपना थॉट बदल सकते हैं? When you want to master your emotion, first thing you need to work on is your thought.
लेकिन क्या हम अपना थॉट बदल सकते हैं, और क्या वो थॉट डिफॉल्ट है, इज द क्वेश्चन। या फिर थॉट कहां से आ रहा है, इज द क्वेश्चन। सो नाउ योर थॉट कम्स फ्रॉम योर बिलीफ सिस्टम। योर थॉट्स कम फ्रॉम योर बिलीफ सिस्टम। अच्छा, एक लाइन जरूर लिख लो, इंपॉर्टेंट है, यू आर नॉट योर थॉट्स। क्या लाइन है? यू आर नॉट योर थॉट्स। Any thought which we give energy to, that creates everything. अगर वो थॉट पॉजिटिव है, उसको एनर्जी दे रहे हो, एक्सपीरियंसेस इमोशनल एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव होंगे। अगर वो थॉट नेगेटिव है, उसको एनर्जी दे रहे हो, इमोशनल एक्सपीरियंसेस नेगेटिव होंगे। एक और चीज लिखो, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी मजेदार चीज है। फैक्ट प्लस स्टोरी इज इक्वल्स टू ड्रामा। फॉर्मूला है, फैक्ट प्लस स्टोरी इज इक्वल्स टू ड्रामा। ठीक है? फ्रेंड ने देखा नहीं मेरी तरफ, मैंने स्टोरी दिया कि निग्लेक्ट कर रही है और मुझे ओवरलुक कर रही है। ड्रामा कैसा बना? पिटी पार्टी कर रहे हैं हम, हाय बेचारी, मैं, दुनिया ऐसी है, अपने हमसे काम ले लिया, अब अपने काम की बारी आई तो हमको निग्लेक्ट कर रही है। ड्रामा। फैक्ट, फ्रेंड पलट के चली गई। स्टोरी, चश्मा नहीं पहना। नाउ ड्रामा इज एक्साइटिंग ड्रामा, पॉजिटिव ड्रामा, इमोशनल हाइट, एक तरीके से हाइट ऑफ इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस जो ओके, लेट्स नॉट टॉक कॉल देम एज पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस, लेट्स कॉल देम एज एम्पावरिंग और डिसएम्पावरिंग इमोशंस। Emotions are never negative nor positive, but they can be empowering or disempowering. ठीक है? सो होता क्या है, वो बिलीफ सिस्टम जो है, वो बिलीफ सिस्टम कहां से आता है? बिलीफ सिस्टम बहुत सारी चीजों से आता है। सबसे पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, देन इन व्हाट सोसाइटी यू आर लिविंग, देन योर एजुकेशन, देन your I would say exposure, then the people you are hanging around with, maybe there are people जो बहुत ही गांव से, बहुत ही गरीब घरों से आके बहुत बड़ी बड़ी चीजें करके चले गए, because they are hanging around with people who are vibrating at higher energy. And when you hang around with people who are vibrating at lower energy का मतलब है जो डिसएम्पावरिंग इमोशंस के साथ में ही है पूरे समय, उनके साथ में आप हैंग आउट कर रहे हो तो आपके भी इमोशंस डिसएम्पावरिंग। और अगर आप उन लोगों के साथ में हैंग आउट कर रहे हो, लाइक चौबे जी, जो बड़े एम्पावरिंग इमोशंस में ही रहते हैं हमेशा, जो हमेशा बड़ी बड़ी विजन क्रिएट कर रहे हैं, जो हमेशा यही प्लान कर रहे हैं कि व्हाट बेटर कैन बी डन, तो आप हमेशा एक हाइटेंड इमोशन में रहोगे, एम्पावरिंग इमोशन में रहोगे। So what are the people? What are your past experiences? When I have given you this example of my friend, so this is not a real life example for sure. लेकिन जब मुझे ऐसी किसी फ्रेंड के बारे में मेरे मन में अगर आएगा तो हो सकता है I have had past experiences with her. Else, I have had past experiences, similar experiences with somebody else. लेकिन हमारे समय परेशानी है कि हम जनरलाइज कर लेते हैं कि अगर एक के साथ हुआ है तो वो सबके साथ वैसी होगा, अगर एक बार हुआ है तो हर बार वैसी होगा। नो, यू हैव पावर ओवर योर इमोशंस, यू हैव पावर ओवर योर थॉट्स, एक्सरसाइज दैट पावर। अब जहां पे आप नोट्स लिख रहे हो वहां पे नोट्स में वो बनाओ, पाइल बनाओ, पाइल, मे बी पिरामिड जैसा बना सकते हो, मे बी बस ऐसे ऐसे स्टेयर केस जैसा बना सकते हो, पाइल अप करना है हमको कुछ चीजें। अब हमारी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में ऐसे पाइल्स हैं। एक पाइल है रॉन्ग थिंग्स का, दूसरा है राइट थिंग्स का, एक पाइल है गुड, दूसरा है बैड,
एक पायल है वांटेड, दूसरा है अनवांटेड. नाउ टेल मी समथिंग, ये जो गुड बैड अगली, वांटेड अनवांटेड, या फिर राइट और रॉन्ग, कौन डिसाइड करता है ये? संगीता इज सिटिंग हियर. संगीता इज बेसिकली अ सिंधी. संगीता की फैमिली में एंटरप्रेन्योरशिप इज अ गुड थिंग, बट समवन हु इज अ सर्विस मेंटालिटी, सर्विस बैकग्राउंड पर्सन, उनके अगर आप बोलो कि एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप करना है, अरे नहीं नहीं, दिस इज अ बैड थिंग. पायल किस पायल में चला गया? बैड में, रॉन्ग में, अनवांटेड में. डॉक्टर नहीं बनोगे तो कुछ नहीं होगा, अनवांटेड में. डॉक्टर बनना वांटेड, और डॉक्टर के अलावा कुछ भी बनना अनवांटेड. बट टेल मी समथिंग, इज दिस राइट और रॉन्ग? इज दिस एक्चुअली वांटेड और अनवांटेड? इज दिस एक्चुअली गुड और बैड? और इज इट जस्ट, टेल मी इन द चैट बॉक्स कि ये सच में ऐसा ही है जैसा दिख रहा है, या फिर इट इज नॉट लाइक दैट. Becoming a doctor, doing an entrepreneurship, any of these, are they good or bad? Depends on the thoughts and perspective. Yes. तो जैसी कोई फैक्ट होता है, जैसी कोई इवेंट घटता है, we put them in these piles. और क्योंकि हम इन पाइल्स में डालते हैं, तो यहां से शुरू होता है हमारा थॉट, और फिर हमारा इमोशन, और फिर हमारा एक्शन. सो वेयर यू नीड टू वर्क ऑन इज, ये जो पाइलिंग हम कर रहे हैं, जैसे ही वो पहली बार हमें क्लिक होता है, सो ओके, समवेयर आई टोल्ड यू कि ये जो थॉट्स हैं, ये जो इमोशंस हैं, ये सब हमारे ब्रेन का काम है, और ब्रेन का काम है टू सेफगार्ड अस, राइट? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट थॉट्स, what beliefs, rather not thoughts, what are the beliefs that are serving me, and what are those beliefs of mine that are not serving me. ये डिफरेंशिएशन इस हफ्ते हमको करना है. क्या डिफरेंशिएशन है? what are the thoughts that are serving me to move forward, and what are the thoughts that are not serving me to maybe not move forward, rather to which are keeping me stuck. और बहुत सारे केसेस में they don't only keep you stuck, they pull you back. So if there are any beliefs that are pulling you back, that are keeping you stuck, identify those beliefs. उन beliefs को हम कहते हैं either disempowering beliefs or limiting beliefs. अब वो limiting beliefs आपके personal भी हो सकते हैं. Maybe I cannot do it, I am not good enough, I am not good looking, I am fat, I am short, I have gray hair, I have this, I have that, a lot of things. So this week I want you to make a list of all the disempowering belief you are coming across. All the disempowering beliefs that you come across about yourself, obviously. ऐसा कोई भी बिलीफ जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट. एंड ओके, लेट्स गो बैक टू योर स्टोरी. वो जो एक इवेंट लिखा है हमने, जस्ट लुक एट दैट इवेंट, 1 or 2 or 3, जितने भी आपने लिखे, 3-4 इवेंट्स जो हमने कहा था कि विच आर supposedly negative events of life. Now just look at those events and see. अगर वो पास्ट में बहुत दिन हो गए, now see to them, वो एक्चुअली नेगेटिव इवेंट्स ही थे या उन्होंने कुछ अच्छा भी किया लाइफ में? ज्यादातर नेगेटिव इवेंट्स अच्छा करते हैं लाइफ में, ऐसा मेरा मानना है. हाँ, लेकिन जो आपने लिखा है उसमें, जो हाँ. एक इवेंट जो लिखा है,
उसने क्या अच्छा किया है मेरे लिए? किया है मेरे लिए कुछ अच्छा उसने? लुक एट इट, उसने क्या अच्छा किया है मेरे? अब नाउ बिकॉज ऑल ऑफ अस आर पेरेंट्स इन दी रूम, लिमिटिंग बिलीव्स, हमारे लिमिटिंग बिलीव्स कई बार हमारे बच्चों को भी लिमिट करने लगते हैं। अगर 90% नहीं आए तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर तुमने कॉमर्स लिया तो तुम गए ही गए। दिस इज योर लिमिटिंग बिलीफ, दिस इज नॉट द रियलिटी। आपके एक्सपीरियंस, आपके अपब्रिंगिंग के कारण यू आर पुटिंग अ लेबल टू इट दैट दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, ऑल्दो दिस इज नॉट। एक कहानी सुनाती हूँ मजेदार। मैंने भी बहुत ही रिसेंटली ये स्टोरी सुनी और मुझे एक्चुअली पता नहीं, अगेन ऐसा तो नहीं कि मैंने सुना दी है अगर ऐसा लगे कि मैंने सुना दी तो मुझे बता देना। ओके, सो देयर वाज अ लेडी इन अमेरिका, शी वाज अराउंड 50 years old, अ ग्रैंड मदर। तो वो एक दिन सड़क पे अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ में जा रही थी, एंड हर ग्रैंड चाइल्ड वो किसी गाड़ी के नीचे आ गया। और जब वो गाड़ी के नीचे आ गया तो ये जो ग्रैंड मदर थी, इसने सिंगल हैंडेडली वो गाड़ी को लिफ्ट किया और अपने पोते को वहां से निकाल लिया, ग्रैंड चाइल्ड को। एंड नाउ शी हैड बिकम टॉक ऑफ द टाउन, everybody was talking about her, all the journalists, all the news channels, everybody was talking about her कि how can a 50-year-old woman lift a car to get out her grandchild? बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़ गए, जर्नलिस्ट सारे, के इंटरव्यू करना है, इंटरव्यू करना है, इंटरव्यू करना है, एंड शी वाज नॉट रेडी टू गिव एनी इंटरव्यूज टू एनीवन। देन नाउ people have just थॉट कि नहीं दे रही है, कोई बात नहीं, बट वन जर्नलिस्ट वाज एडमेंट कि नहीं, मैं तो बात करना चाहता हूँ। ही जस्ट कॉल्ड हर अप एंड आस्क्ड हर कि मुझे आपसे इंटरव्यू नहीं लेना, लेकिन बस आप एक बार मिल लो मुझे और मुझे ये बता दो आप इंटरव्यू दे क्यों नहीं रहे हो। एंड somehow something clicked and she gave this journalist an appointment. वो जर्नलिस्ट गया, उस आई वुड कॉल हर अ ग्रैंड मदर, दादी, दादी के पास में जर्नलिस्ट गया वहां पर, और जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई बाकी तो ठीक है कि आप इंटरव्यू नहीं दे रहे हो और ये सब कुछ, लेकिन आप क्यों नहीं दे रहे हो इंटरव्यू? एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। बोले क्योंकि उस दिन के बाद से मैं डिप्रेशन में चली गई, मैं गिल्ट में चली गई। when I had so much of the strength, why didn't I use it when I was young? 50 साल की उम्र में अगर मैं गाड़ी उठा के अपने पोते को निकाल सकती हूँ, तो जब मैं 25 साल की थी तब मैं क्या क्या कर सकती थी? जर्नलिस्ट ने बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा दादी से, क्योंकि टेल मी कि अगर आप आज 25 साल की होती तो आप क्या कर रही होती, और आपको ये पता होता तो आप क्या करना चाहते? बोले मुझे ना जियोलॉजिस्ट बनना था और मुझे ये करना था, वो करना था। सो व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम दैट नाउ? एंड देन दादी स्टार्टेड गिविंग ऑल द एक्सक्यूजेस कि अरे मेरी एज इतनी है, मैं ये हूं, वो हूं। जर्नलिस्ट का स्टॉप, आई डोंट वांट द आंसर्स। व्हेन आई गो बैक, आस्क योरसेल्फ व्हाट इज स्टॉपिंग यू? एंड आफ्टर 3 years दैट दादी कॉल्ड दैट जर्नलिस्ट कि मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी है यूनिवर्सिटी में और मुझे उसी यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गई है एज अ जियोलॉजी प्रोफेसर। And that is the power of your thought, your emotion. जब भी ये लगे मन में कि ये नहीं हो सकता, just look at the people who are kind of similar situation to you, still they are able to do it. और यहाँ पे तो हम सारे लोग, मतलब आई वुड से संगीता, मोनिका, विक्रांत, मे बी माई सेल्फ, हम सभी वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ऑड से निकल के किया है। हमने सबने आइडेंटिफाई किया है, वो वहां हम बाहर निकल के आए हैं कि हाँ ठीक है, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग
to me. What I do depends on what I want to do, because it is not happening to me, it is happening for me. लिख लो इस बात. Nothing in your life is happening to you. When you say कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो अपने आप को? आप अपने आप को विक्टिम बना रहे हो. Nothing in your life is happening to you. Everything is happening for you. Meaning, everything that is happening in the life is to empower you, is to promote you, is to push you towards your best self. So all of us, we create our piles. वो जो negative, positive, right, wrong, wanted, unwanted, इसके piles हम अपने आप सब अपने बनाते हैं based on our belief systems that was created maybe sometimes consciously and most of the times unconsciously. किस basis पे? Again, bases are the same. सेम मीनिंग एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. एजुकेशन, एक्सपोजर, फैमिली बैकग्राउंड, अपब्रिंगिंग, सोसाइटी, फ्रेंड्स, एक्सपीरियंसेस, पीपल यू आर हैंगिंग अराउंड विद, उनके साथ में हमारे बिलीफ सिस्टम बनते हैं. सो योर बिलीफ सिस्टम्स डिसाइड विच पाइल, योर बिलीफ सिस्टम डिसाइड्स विच पाइल एनी फैक्ट विल गो टू. वो जो फैक्ट हमारे साथ में घट रहा है, हमारे आसपास जो घट रहा है, वो किस पाइल में जाएगा, ये हमारे बिलीफ सिस्टम तय करते हैं. सेम फैक्ट कैन गो टू अ राइट पाइल और अ रॉन्ग पाइल फॉर अनदर पर्सन. वांटेड पाइल टू वन पर्सन एंड अनवांटेड टू अनदर. वही कॉमर्स और वॉट एवर सब्जेक्ट्स की जो हमने बात की. एंड सेम थिंग कैन गो टू दी right pile or the wrong pile, unwanted pile or the wanted pile. Right? Entrepreneurship is difficult. Doctor, engineer is safe. किसने बोला है? There are doctors. I know for this for a fact. My cousin is a dentist in Gwalior, and he opened his clinic. उसकी क्लिनिक में जो असिस्टेंट डॉक्टर रखा था उसने, दैट असिस्टेंट डॉक्टर, तो इन लोगों का टाई अप ऐसा था कि वो जो असिस्टेंट डॉक्टर है वो सुबह आएगा एंड ही यूज्ड टू गो टू द क्लिनिक इन द इवनिंग्स. और कुछ रेंट का कुछ हिस्सा शायद ये लोग शेयर कर रहे थे. दैट डॉक्टर लेफ्ट दिस सेटअप बिकॉज ही गॉट अ जॉब समवेयर. एक डेंटल कॉलेज जॉब मिल गया. एंड देन जो यहाँ पे इनकी क्लिनिक में एक सफाई वाला जो बच्चा था, ही आस्क्ड संडे को उनको कितनी तनख्वाह मिल रही होगी वहां पे. तो 8,500. 8,500 salary for a dentist is a safe choice instead of coming to the clinic every day. 8,500 रुपए आप महीने भर में नहीं कमा पाओगे क्या? But then the mindset. Yes, I cannot. This is a safe play कि काम करोगे या नहीं करोगे, मेरे पेशेंट आएगा या नहीं आएगा, I will get it. But on the other hand, my cousin was doing it. Right? So इनके हिसाब से वो right है, उसके हिसाब से वो ही wrong है. इनके हिसाब से ये wanted है, उसके हिसाब से वो same thing is unwanted. Right? Same facts can go to different piles for different a lot of us. क्योंकि हम सारे लोग अपने अपने पाइल्स बना रहे हैं डिपेंडिंग ऑन आवर ओन बिलीफ सिस्टम्स. रादर हमारे इमोशन गाइडिंग सिस्टम जो है उसके हिसाब से हम ये पाइल्स बनाते चले जा रहे हैं. आर यू विद मी? विक्रांत वीडियो ऑन रखो, मजा आएगा, दिखता भी जाएगा कि क्या सुन रहे हो तुम. या फार्म पे चले गए? चला गया.
वहां पे चला गया. ओके. So now we need to understand this. It's not what's happening to us. It's what we are, it is about the meaning we are giving it based on our belief system and emotional guiding system, right? Every emotion you feel is the outcome of the emotional habits, is the outcome of the emotional habits you have built around it. जो भी कुछ हम इमोशंस फील कर रहे हैं वो हमारी इमोशनल हैबिट्स हैं. हैबिट का क्या मतलब है? मोनिका, यू आर फ्रोजन. ओके, वापस आ गई. हैबिट का क्या मतलब है कि इन दिस सिचुएशन आई विल फील लाइक दिस, सो दिस इज एन इमोशनल हैबिट. एवरी इमोशन यू फील इज द आउटकम ऑफ योर इमोशनल हैबिट you have built around that event, maybe a fact. And every emotional habit you have built is based on the belief system we are living over and over again. And I would say, if it serves you, if it empowers you, hold it tight, keep it with you. But if it disempowers you, if it does not serve you, let it go. Let it go. Because then when you let those disempowering habits, disempowering beliefs go, then the real alignment starts. In this life alignment journey, I want you to release all those disempowering beliefs, all those beliefs that are not serving you. So इस हफ्ते हमको लिस्ट बनानी है of all the disempowering beliefs, all the limiting beliefs, all the beliefs, rather to go a step forward, not only the belief system, maybe list of all the people who are disempowering you, all the people who are not serving you right, serving you on your journey of greatness, I would say. Serving you का ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे कि especially in the context of relationship. Serving you का ये मतलब नहीं कि जो आपकी बात नहीं सुन रहा, he is not serving you. No, a person who is always keeping you stuck in something is a person who is not empowering you, who is disempowering you. Because the ultimate truth is nothing is permanent in life. Nothing is permanent in life. चलो एक फॉर्मूला लिखते हैं. So now if you want to change anything, ये हमने शायद पिछले सेशन में भी बात की थी. If nothing changes, if nothing changes, की थी क्या हमने ये बात पिछले बार? Nothing changes if nothing changes. अगर if you want to change anything in life, you need to change something. You need to experiment with things to change, right? So if you want to bring a change in anything, the only way is to make a different choice. Life में कुछ भी चीज बदलना है तो obviously the most obvious step is to make a different choice. हम हमेशा वही करते रहे and expecting a different result. You are living in a fool's paradise. When you're not changing anything, how would the result be different? अगर सेम सिचुएशन में आप हर बार सेम रिएक्ट करते हो और सेम तरीके से लड़ाई करके एंड होता है रिलेशनशिप नहीं मतलब वो दिन या वो आर्ग्यूमेंट, वैसे ही होगा. Because situation is same, fact is same, your reaction is same, obviously result will always be same. If you want to change the result, if you want to change that argument to end on a better note, the only thing you can change is what you are doing. So now हमने जब हमने लाइफ अलाइनमेंट वर्कशॉप किया था उसमें हमने 3 C's के बारे में बात किया था. क्लैरिटी, करेज एंड कंसिस्टेंसी.
Now I'm giving you another 3 C's here. Write down 3 C's. ये 3C फ्रेमवर्क है, फॉर्मूला है रादर. It takes a it takes a chance. It takes a chance, पहला C, to make a different choice. दूसरा C, to be able to create change in my life. When you take a chance to make a different choice, it creates change in life. And why I'm saying chance? Because it is a chance. It can be better, it cannot be better. But unless you have tried it, you don't know. For sure, the way you are reacting, not something you want, right? ये तो पक्की बात है ना कि जो अभी चल रहा है वो हमें नहीं चाहिए. अगर वो नहीं चाहिए तो जो हम अभी कर रहे हैं वो नहीं करना है. You need to take a chance with something else, another time with something else, another time with something else, unless you reach to a point where your choice, now you know that this is a good choice. For example, I always do this exercise in my training sessions, physical training sessions, that ये मैंने मुट्ठी बनाई है, and assume that I'm sitting next to you and I ask you to open this fist. How would you do that? अपने अपने कैमरास ऑन करो और मुझे बताओ कि अगर मैं सामने बैठी हूँ मुट्ठी बना के, तो आप ये मुट्ठी कैसे खोलोगे? मेरी मुट्ठी खोलना है आपको, मैं आपके सामने बगल में बैठी हूँ. कैसे खोलोगे? आपको गुदगुदी करके. ओके. विक्रांत कैसे खोलोगे? I'll offer you something that you can't refuse. ओके. संगीता? तुम्हारी आवाज बहुत ही ज्यादा ब्रेक हो गई, कुछ समझ नहीं आया. कुछ समझ में नहीं आ रहा, चैट बॉक्स में लिखो. चलो. अब She's saying she will request you to open the fist. जैसा हमेशा करती हूँ. वेरी गुड, वेरी गुड. इसका मतलब ये है कि 2 हफ्ते में हमने कुछ सीख लिया है. So most of the time what happens is हमारा बहुत ही natural reaction towards any मुट्ठी that is closed is एक एक उंगली करके खोलेंगे, राइट? मीनिंग ताकत लगाएंगे. लेकिन मैं यही कहती हूँ कि इस मुट्ठी को सबसे आसान तरीका खोलने का तो यही है, रिक्वेस्ट करने से भी पहले जस्ट आस्क, कैन यू प्लीज ओपन द फिस्ट. एक ये हो सकता है, राइट? सो अब पक्का नहीं है ना. इट टेक्स, you need to take a chance to make a different choice to be able to create a change, right? पहला क्या किया? आस्क. नहीं खुली. दूसरी बार टेक अ चांस विद अ डिफरेंट चॉइस. विक्रांत ने कहा मैं कुछ ऑफर करूंगा. नहीं खुली. टेक अ चांस विद अ डिफरेंट चॉइस. गुदगुदी कर देंगे. नहीं खुली. टेक अ चांस विद अ डिफरेंट चॉइस. So when I was taking a session with SSB के DIGs meaning, so they were all elder to me, nearing 60, and they were only 5 of them. और मैं ऐसी मुट्ठी बांध के खड़ी हुई थी. मैंने कहा कौन खोलेगा? तो एवरीबडी केम और वही ताकत लगा के जो खोलते हैं सारे लोग खोलने लग गए. तो पहले राउंड में तो यही हुआ, सबने ताकत लगाई. देन आई आस्क्ड देम कि अगर अच्छा हाथ नहीं लगाना हो, छूना नहीं हो, तो कैसे करो? पीपल वर थिंकिंग कि क्या करना है. अ मैन केम अगेन, वो DIG थे, वो आए. उन्होंने कहा लिटरली ही टच्ड माय फीट्स एंड सेड आशीर्वाद दो हाथ खोल के.
So it is always how far you can go, what chances you can take, right? तो मुझे इतना विविडली याद है, वो उनका चेहरा भी आज तक याद है मुझे, वो सॉल्ट एंड पेपर बाल और थोड़ा सा बल्कि शरीर, और एक्चुअली बिकॉज this was so different. So you need to take a chance to make a different choice to be able to create the change you want to see in your life. ठीक है? So ये एक जिसको कहते हैं, this is a kind of a mantra. Coming back to the muthi, there are two perspectives to this fist. One is the perspective मैंने मुट्ठी बांधा है और तुम्हारा perspective इस मुट्ठी के तरफ. Other, my perspective towards this fist. Sometimes we have a very disempowering belief over all the, I would say, no's in our life. कि एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी, अरे एक बार मना कर दिया ना, अरे एक बार मना कर दिया कोई बात नहीं, दूसरी बार सुन तो लो सामने वाला क्या कह रहा है. जिसकी मुट्ठी बंधी है वो भी तो इसी एटीट्यूड में होता है ना कि इस मुट्ठी को खोलना नहीं है. किसने बोला है? तो जब हमारी मुट्ठी बंधी होती है तब हम भी इसी एटीट्यूड में होते हैं, उसको खोलना नहीं है. एंड आई मस्ट टेल यू दिस, अगर कहीं कोई मुट्ठी बंधी हुई है और वो आराम से नहीं खुल रही, आप कितनी भी ताकत लगा लो, वो शायद नहीं खुलेगी अगर उसको नहीं खोलना होगा, राइट? शायद आपकी ताकत ज्यादा और आप आज खोल दोगे इस मुट्ठी को, बट देन बीइंग ह्यूमंस इट इज ऑलवेज अबाउट रिलेशनशिप्स. मुट्ठी तो आज खुल जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा, रिश्ते में वो गांठ पड़ जाएगी. कोई भी रिश्ता, जरूरी नहीं है वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, बच्चों का रिश्ता है, कोई भी रिश्ता, वो रिश्ता ऑफिस का रिश्ता हो सकता है, वर्किंग रिलेशनशिप हो सकता है. आपने एक बार जबरदस्ती से मुट्ठी खुलवा दी किसी की, खुल जाएगी शायद, लेकिन वो हमेशा के लिए वो एक क्रैक जो है, एक इच जो है उस रिलेशनशिप में हमेशा के लिए आ जाएगा. यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट बॉस, यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट एम्प्लॉय ऑफ योर्स. तो जब भी हमने मुट्ठी बांधा भी है तब भी हमें ये ध्यान रखना है, इसको बांधना ताकत से जरूरी नहीं है और ये ताकत से खुल भी नहीं सकती, राइट? चलो नेक्स्ट, क्या क्या बात कर चुके हैं हम? अच्छा, मुझे जस्ट राइट मी इन द चैट बॉक्स व्हाट ऑल कॉन्सेप्ट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. It's easier to say them. हाँ अच्छा, हाँ, बिकॉज यू आर ऑन द मोबाइल इट्स इजियर टू से. ओके. बताओ. हाँ, एक तो बताओ, एक बताओ सब लोग. So, the first thing we spoke about is that emotions are neither positive or negative, and then we made a triangle of and it or T, thought, emotion, and actions. You're not your thoughts. Fact plus story is equal to drama. Stop. Over to you, Sangeeta. चैट बॉक्स में लिखा वैसे तो मुझे एक कैच लाइन अच्छी लगी, Nothing नथिंग changes if चेंजेस इफ nothing नथिंग changes. चेंजेस. Good. Emotions are neither positive nor negative. 3C's framework, it takes a chance to make a different choice to be able to create change. And then we learned about that pyramid, जो आपने बताया, compartments, right, wrong, wanted, unwanted, and how our belief system is actually parking that to the different, you can say, dimensions. And also the past experiences, the people around you, एक formula था, fact plus story equals to drama. That is very important. And the line you have gave, you are not your thoughts. Yes. That also you have shared. And most Bas, important, stop, we learned stop. that 60,000 thoughts आपने Yeah. जो बताया, अब ये याद रहेगा कि 60,000 थॉट्स आते हैं और कितना उसको मतलब उसमें से क्या किस पे फोकस करना है. एंड द बेस्ट Right. पार्ट व्हिच आई लव इज द थॉट टू व्हिच यू गिव द एनर्जी इज एक्चुअली विल हेल्प यू टू गिव द आउटकम. तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी. दैट इज व्हाट ऑल वी हैव लर्नड. या Stop. विक्रांत, ऐड करो कुछ. Hello. When your emotions are high, your intelligence is low. This Wow. is the
gist of all what we are doing here. And your belief system are the result of your background, your education, the people you hang out with. So you have to hang out with positive, empowering people. Yes. What else? Nothing changes if you don't change. Nothing. 3C, Three three C. change, and that is chance, choice, and change. So you have to take chance to make a change for to make a choice to have a different Different choice to uh, create the change. Yes. change. Great. So now these three C's is the only way to dissolve the permanency of anything that is happening around you. लाइफ की कोई भी चीज ऐसी है जो आपको लगता है परमानेंट हो गई, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा. Whether it is relationship, whether it is financial status, whether it is health, whether it is career, whether it is any other area of life. The only thing to dissolve, the only thing that can dissolve that permanency of anything that is happening around you is this 3C formula here. The more you take chances to make different choices, the more changes you will keep on creating. So, अगर आपकी लाइफ में कहीं भी कोई भी जगह ऐसी जहां पे लगता है कि अरे बस चल रहा है, look into it whether you are making different choices, whether you have scope to improve, because there is always scope to improve yourself, right? अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं. So the basis of life is freedom. I want you to understand that the basis of life is freedom. Freedom for all those beliefs that are disempowering. Freedom from fear, freedom from doubt, freedom for those people who are holding you back, freedom for your own, from your own thoughts, your own beliefs that are disempowering you. Freedom. So the basis of life is freedom. The result is expansion. When you free yourself from all these things that are disempowering you, that are limiting you, that are keeping you stuck, the result is expansion. Expansion happens when you free yourself. When you are ready to explore new things, when you are ready to evolve into your better version, then expansion happens. So the basis of life is freedom. The result is expansion, and the purpose of life is joy. Purpose of life is joy. So the more you expand yourself, more joy will come into your life. The more you are stuck in the same situation, same environment, with same people, you will feel disconnected. You will feel unhappy. And I hope a lot of you can relate with this. That when you are stuck in a situation that is draining you out, expansion only happens when you let go of all those things which are keeping you stuck, which are draining you out. Give me an I in the chat box if you understood what I mean to say. Okay. Thank you. So हम अभी बात करें alignment की, right? Life alignment journey. The more you are away from your reality, your core self, the more you are misaligned. And more you will keep feeling disempowering. And for that matter, you will keep on feeling those disempowering emotions.
You've seen people around you, maybe you have experienced some phases in your life when you felt कि सभी कुछ disempowering है, वो emotion हमेशा negative ही emotion चला आ रहा है, कभी वो आ ही नहीं रहा, अच्छा emotion आ ही नहीं रहा. And go back to that situation and understand how misaligned were you from your core self when you were in that situation. The more you are away from your reality, the more you are misaligned. And more you will keep feeling that disempowering, all those negative emotions. All your emotions are constant feedback on whether you are aligned or not. Agar joyous emotions ज़्यादा हैं, that means you are doing everything that is aligned to your core self. अगर emotions, and for that matter, I would say, जैसे हम कभी-कभी देखते हैं उन लोगों को जो criminals हैं कुछ. So I'm not talking about the people who are actually sick in their head. I'm talking about the people who are not sick, still they are taking shortcuts. तो जो भी लोग वो शॉर्टकट्स ले रहे हैं, आप हमेशा देखोगे वो उनके पास पैसा बहुत होगा, उनके पास शायद आपको दिखेगा कि वो मजे बहुत कर रहे हैं, बट यहाँ वो हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, उनके इमोशन हमेशा नेगेटिव रहेंगे, हाउएवर पैसा वैसा कितना भी हो. Because a lot of time people say कि नहीं पैसा सब चीजों का इलाज होता है. No. And there are people around you who do not have a lot of money, still they look very happy because they are aligned with their own self. So your emotions are the constant feedback of whether you are aligned to your core self or you are struggling to align to the outside world, I would say. जब आप अपने आप से अलाइन नहीं होते, जब आप इस बात पे ध्यान देते हो कैसे मैं शॉर्टकट से पैसा कमाऊं, तो आप अपने आप से अलाइन ना होके आप किससे अलाइन हो रहे हो? आप दूसरे लोगों के साथ में अलाइन करना चाहते हो. और एज पर हर, एज पर हिम, एज पर दी वर्ल्ड, एज पर दी सोसाइटी, अगर मैंने ये कार ले ली, अगर मैंने इतना बड़ा घर बना लिया, अगर मैंने ये कर लिया, अगर मैंने वो कर लिया, देन आई विल बी हैप्पी, देन आई विल बी कॉल्ड एज अ सक्सेसफुल पर्सन. नो. अगर उसने मेरे बारे में ये सोच लिया, देन आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन. नो. राइट. अभी एक बहुत ही एक्चुअली बहुत ही एम्पावरिंग और बहुत ही आई वुड से आई ओपनिंग फैक्ट एक मैं बताने वाली हूँ जो सुन के बिल्कुल मजा ही आ जाएगा. So when you have a lot of disempowering emotions, when you are stuck, हमने जब हम लाइफ अलाइनमेंट जर्नी वर्कशॉप में थे, 3-day वर्कशॉप, तब हमने जरूर बात की एक पेन एडिक्शन के बारे में. डू यू रिमेम्बर दैट? Yes, yes, no, no. Sangeeta, do you I you was have not. you haven't attended? Yes, chalo. Then I will explain a bit about pain addiction. Okay. So whenever you are trying to align yourself with the outside world, what you do is you want them to change, right? कि तुम बदल जाओगे तो ऐसा होगा, तुम तो सारे इमोशंस, एक तो नेगेटिव इमोशन है, डिसएम्पावरिंग इमोशन है. जब आपके इमोशंस डिसएम्पावरिंग होते हैं, व्हेन you are in a bad emotional state, you would see a lot of people who are very, I would say, unsuccessful in their life. Unsuccessful meaning relationship भी अच्छी नहीं है, पैसा भी नहीं है, खुश भी नहीं है. This is unsuccessful in my point of view. Because अगर 8 aspects of life हैं, so Sangeeta, as you were not there in the workshop, so there was a wheel of life we had discussed. उस wheel of life में there are 8 aspects to the personality, to the any individual. Health, wealth, relationship, career, ये हमको सबको पता है और हम सब पे अक्सर ध्यान देते हैं. The rest 4 are personal growth, spirituality. You're writing them now? Yes. Personal growth, spirituality, impact, and recreation. ठीक है? What you said, health, care, and Health, wealth, relationship, career. relationship. ठीक है?
out of these 8, only 2 of them are external. Only 2 of them are external, health and wealth. All rest of them are internal. एक्सटर्नल का मतलब क्या है? वो दूसरों को दिखता भी है, जिसको आप ऐसे मेजर भी कर सकते हो. All rest of others are all internal. And most of our focus is on the external thing. मतलब अगर वो 8 एस्पेक्ट्स हैं हमारी लाइफ के, तो एक्चुअली सिर्फ 20% पे हम फोकस करते हैं, 80% हम छोड़ दे रहे हैं. जबकि हमें 80% पे अगर हम फोकस करेंगे तो 20% अपने आप ही ठीक हो सकता है. राइट? सो यस, क्या बात करना थी हमें? हाँ, तो हमें बात ये करना थी पेन एडिक्शन के बारे में. तो व्हेन यू कीप ऑन focusing on people, what you start doing is you start doing blaming them, start complaining. जो हमने पिछले सेशन में भी बात की थी कि हम ब्लेम करते हैं और कंप्लेन करते हैं. एंड व्हेन यू ब्लेम एंड कंप्लेन, एक्चुअली कहाँ आप किस पोजिशन में होते हो, किस स्टेट में होते हो? यू आर इन अ विक्टिमहुड. You are in a victimhood. And our purpose should always be not to remain in victimhood, rather to be in victorhood. Not in victimhood, rather to. और सबसे मजेदार बात यहाँ पे ये है, मैं जो बोल रही थी कि बहुत ही आई ओपनिंग बात मैं बताने जा रही हूँ. सो ये जो विक्टिम्स होते हैं, इन विक्टिम्स को पेन एडिक्शन है. दे स्टार्टेड लविंग दैट पेन. व्हाई? इन विक्टिम्स का ईगो बहुत हाई होता है, जबकि होना क्या चाहिए कि अगर आप दबे कुचले ये हो वो हो और आप अगर लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे हो, तो आपको थोड़ा डाउन टू अर्थ होना चाहिए. वैसे एक्सपेक्ट हम ये करते हैं. बट यू जस्ट लुक एट द विक्टिम्स अराउंड यू, दे हैव वेरी हाई ईगो. क्यों? बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट सेइंग कि तुम बदलोगे तो ऐसा होगा, तुम्हें ऐसा होगा, जब तुम किसी और को, व्हेन यू आर टेकिंग समबडी डाउन हु इज गोइंग अप, in your head, when you take somebody down, you are going up, right? जब तुम बोल रहे हो तुम्हें ये नहीं आता, तो तुम ये बोल रहे हो मुझे ये आता है. Your ego is going up. You are very egoistic. So ये जो victims है, इनका ईगो बहुत हाई होता है और इनको पेन एडिक्शन की हम बात कर रहे थे. पेन एडिक्शन इन्हें हो गया. पेन एडिक्शन क्यों हो गया? बिकॉज व्हेन दे टेल देयर स्टोरीज टू पीपल, they show them sympathy. When they show them sympathy, you are actually, so they are saying कि मुझे प्यार करो क्योंकि मैं दुखी हूं. And you start giving them that love. You start feeling that pain with them. And this makes them happy. कह रहे इतने लोग मुझसे प्यार करते हैं, इतने लोग मेरे साथ हैं, इतने लोग मेरे काम, मुझे कभी किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे काम तो अपने आप हो जाते हैं. एंड ब्ला 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 ब्ला, कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे काम तो अपने आप हो जाते हैं, मेरे पास तो इतने लोग हैं मुझे मदद करने वाले. I'll tell you something. शायद, I don't know whether this is a good character trait or bad, but when somebody sympathizes with me, I feel very bad. I feel very, very, very bad अगर मेरे साथ कोई sympathize करने आ जाए. मुझे तो तुम ये बोलो कि क्या अच्छा कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर सिंपैथी आप दिखाने आ जाओगे कि फॉर एग्जाम्पल माई मदर इन लॉ इज नॉट वेल एंड शी इज ऑन बेड दीज डेज, अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, टॉक टू पीपल, सो ऐसे लोग जो मुझे ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे ज्यादा प्यार करते हैं, मतलब जिनका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन द फैमिली इज मी, तो वो अक्सर सिंपैथाइज करते हैं, बड़ी परेशान हो रही होगी ना आजकल, तुम्हें कैसे होता होगा ना क्या. And I feel very bad about it when anybody starts, barring some of the people. I'm not saying कि मैं किसी से भी कभी भी शिकायत नहीं कर सकती और sympathy नहीं ले सकती, but most of the time I don't like people sympathizing. So much so कि कभी मेरी मम्मा मेरे साथ sympathize करती हैं तो first thing I do is I start crying because I cannot handle sympathy. I cannot handle it. And there are people who love this.
हाँ यार तुम तो बहुत ही परेशान हो ना, तुम्हें तो कैसे ही चल पाएगा ना तुम्हारा काम, एंड ब्ला 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 ब्ला. सो बिकॉज दे लव सिंपैथी, दे आर एडिक्टेड टू दैट पेन. नाउ दे नो. अब दो दो परेशानियां हुई उनकी लाइफ में. एक परेशानी, अगर वो कुछ अच्छा करने जाएंगे, अगर वो एम्पावरिंग बिलीव करेंगे, तो एक तो ये परेशानी हो गई कि वो लोगों का जो प्यार है, जो लोग बोलते थे अरे तुम तो बहुत परेशान हो, तुम तो बहुत दुखी हो, तुम्हें तो भगवान ने तुम्हारे साथ में बहुत ही गलत किया है, एक तो वो लोग ये नहीं बोलेंगे, उनका प्यार नहीं दिखेगा. दूसरा, एक डिस्कम्फर्ट आएगा जब आप कुछ भी चेंज करने जाओगे. So now this is not only one battle, there are two battles to be fought. One battle is inside of you, that अब लोगों का प्यार नहीं मिल रहा, and another battle is kind of outside, क्या वो discomfort होगा थोड़े दिन. So yes, जब भी आप कभी I would say, okay, let me give you another example, mean another analogy for this. आप एक जॉब कर रहे हो, you are in a job which is draining you out. Which is draining you out. You are in a job which is draining you out. आप नहीं चाहते ये नौकरी करना, आप नहीं चाहते, रिलेशनशिप की बात मैं अभी नहीं कर रही, मैं सिर्फ करियर की बात करूं. आप नहीं चाहते ये जॉब करना बिकॉज दिस इज ड्रेनिंग यू आउट, बट यू आर इनसिक्योर कि अगर मैं छोड़ूं तो मेरा ये फाइनेंशियल स्टेटस है, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो भी खत्म हो जाएगी, राइट? So now if you want to come out of this situation, you have only two ways to come out. One, leave the job and be in a discomfort for some time, जब तक आपका नया काम सेट नहीं हो जाता. या तो ये डिस्कम्फर्ट झेलना पड़ेगा. आइदर कीप दिस जॉब, स्टार्ट डूइंग अ साइड हसल. साइड हसल मतलब नौकरी के बाद में थोड़ा सा कुछ काम करना शुरू करो, स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम देयर एंड मेक योरसेल्फ stable enough so that you can take this risk of leaving the job now. It is kind of कि आपके घर में आपको घर में नल का कनेक्शन चाहिए. अभी आप क्या करते हो, आप कुएं से पानी भर के ला रहे हो, आपको वहां से कुएं से आपको पाइप डालना है अपने घर में सो दैट नल का कनेक्शन आ जाए. तो जब तक वो पाइप डल के आएगा, सो यू स्टार्टेड डिगिंग कि मैं अपने घर के लिए वो लेके आ रही हूँ, पाइप लेके आना चाहता हूँ, तो स्टार्टेड डिगिंग. लेकिन जब तक आप डिग कर रहे हो, जब तक वो पाइपलाइन डाल रहे हो, तब तक कुएं से पानी भर के तो लाना ही पड़ेगा ना. तो अब आप डबल शिफ्ट कर रहे हो, आप कुएं से पानी भर के भी ला रहे हो, आप वो डिग भी कर रहे हो, तो इट इज डिस्कम्फर्ट. तो दोनों में से कोई ना कोई एक डिस्कम्फर्ट तो आपको चूज करना ही पड़ेगा. सो दे आर बेसिकली, दे आर वेरी वेरी इनसिक्योर, दे आर वेरी वेरी एडिक्टेड टू दैट पेन, कि उनको वो डिस्कम्फर्ट, लोग अब लोग नहीं बोलेंगे ना. फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन अ बैड रिलेशनशिप, यू डिसाइडेड टू मूव आउट ऑफ द रिलेशनशिप. अभी तक यू वर समबडी हु वाज जस्ट क्रिबिंग अबाउट द रिलेशनशिप, अरे मैं तो बहुत ही खराब रिलेशनशिप में हूं, मेरा पति तो ऐसा है, मेरा तो ये टॉक्सिक है, फलाना है, ढिमाका है. एवरीवन वाज गिविंग यू लव. हाँ यार, आई कैन अंडरस्टैंड, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम ये करो, तुम वो करो. द मोमेंट यू डिसाइडेड टू लीव दैट रिलेशनशिप, अब वो सारे लोग क्या बोलेंगे? अब वो सारे लोग ये नहीं बोल रहे ना कि वो पति बेकार है, पति बेकार है. अब तो तुमने छोड़ के आ गए ना तुम. अब कोई ये नहीं बोल रहा कि पति बेकार है, वो बोल रहा है अब तुम क्या करोगे. अब वो जो लव और कंसर्न दिख रहा था वो थोड़ा सा कम दिख रहा है, वो डिफरेंट तरीके का लव एंड कंसर्न दिख रहा है. सो यस, द पीपल हु आर, कहाँ थे, मैं थोड़ा सा कहीं ड्रिफ्ट अपार्ट हो गई, कहाँ थे? We were talking about the eye-opening fact of life, that the pain So becomes a toxic. विक्टिमहुड के बारे में हम बात कर रहे थे. सो विक्टिम आर वेरी इगोइस्टिक. They are the people who believe that everyone in and everything needs to change for their life to change. Everyone and everything needs to change for their life to change. और सिर्फ इसीलिए वो बहुत stubborn होते हैं. Very egoistic and very stubborn. They will not change for anything. Sometimes people have their stories around their victimhood. Like I heard yesterday, that I think I am very kind-hearted.
That is why I'm I'm allowing this to happen to me. You are in a bad relationship, and now you have given yourself a story. It is boosting your ego. This is what I was saying. Victims are very egoistic. उनका ईगो इतना हाई होता है, वो उस ईगो को सेटिस्फाई करने की कोई भी स्टोरी बनाएंगे. So there is a friend of mine who is in a bad relationship. Itna bad relationship for 15-17 years, I think. And now she has given herself a story that now I am keeping my husband because I am kind-hearted. If I leave him, where would he go? You are just ego massaging yourself. You are in a denial. You were in a denial and you will remain in a denial. Can I add something here? Do they keep adjusting with the intensity of, because every year it increases? And do they keep adjusting and keep telling themselves that the intensity is also no, they normalize the intensity of the toxicity also? Yes, they do normalize, and they keep on giving different stories to themselves and to the world. वो स्टोरी पहले कुछ और थी, 17 साल पहले कुछ और थी, फिर कुछ और हुई, फिर कुछ और हुई. पहले ये था, पहले मतलब आई एम जस्ट गोइंग बैक टू द फ्रेम ऑफ टाइम. जब शादी होके पहली बार पता चला कि अरे दिस इज नॉट अ गुड रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप सही नहीं है, यहाँ पे मैं गलत हूं, तो ठीक है, लेट्स गिव सम टाइम, वाज द फर्स्ट डे. देन शी डिलीवर्ड. अब बच्चे थोड़े, बच्चों का क्या होगा? Then something else happened. अब इसका क्या होगा? Then something else happened. Now there is a new story that I am kind. I am still, so my ego is so high. I'm so stubborn in some of the things that I cannot change myself. Victimhood comes with super ego and very stubborn attitude towards things. So all these people who are victims are actually saying that I don't need to change anything. Very high ego. कैसे बदलेगा कुछ भी? तुम बदलो, दुनिया बदले, सरकार बदले, मौसम बदले, टैक्स रिजीम बदले, कुछ भी और बदल जाए दुनिया में, तब मेरा लाइफ बदलेगा, not me. When ego is high, you are away from your core. This is something I want you to understand very, very specifically. When you are in a victimhood, your ego is high and you are very stubborn. But when your ego is high, you are away from your reality, your core, which is required to be aligned. Alignmently, जिस core के पास आना है, वहां से आप दूर चले जाते हो when your ego is high. Because now you are not thinking about yourself. You are only thinking about your image. You are not thinking about your happiness. You are thinking about your image that you are presenting to the world. Your ego is high. How I look like. And that is all in your head. Everyone else knows that you are a dumb person. Everyone else knows that you are a failure. Everyone else knows that you are not happy, but you want to pretend it to the world in your head that अगर मैं ऐसा करूं, अगर मैं ऐसा कहूं, then people will think that I am successful. Is this something जिससे बल्ब टाइप जला कुछ कि नहीं? Victims always like to stay in egoistic state. Egoistic state में होते हैं तो वो बड़े ऐसे, एक वर्ड होता था जो पुराने जमाने में हम लोग इस्तेमाल करते थे when I was young, कि बोले वो बहुत प्राउडी हैं.
So these victims like to stay in that pride, that I would say nakli pride, that is actually not a real pride, that is just a pride in their head. Because when you put someone else down who is going up, वही husband wife के relationship में, when you are blaming your husband, you are putting him down, who is going up? You are going up, right? So you are making yourself elevated, like I have this very good heart and everything, whatever. I don't know what story you want to give when you are in such a state. This is just an example because this is a very, very recent happening. So इसीलिए एकदम आ ही गया, ये कहीं जा नहीं रहा अभी. So yes. Okay, yes, हाँ. So, और ये बताओ, anybody who is in a victimhood, anybody who is not achieving heights and they get pride where किसी को भी put down करने में, this is the only place they are getting pride. This is the only place they are getting अपना ego को boost. So they will always try to remain there. क्योंकि because they are not sure कि उससे बाहर निकलेंगे तो कोई ऐसा मोमेंट मिलेगा भी जिसको मैं अपने आप को एक एलिवेटेड स्टेट में रख पाऊंगी या नहीं, या रख पाऊंगा या नहीं. So I want to stay in that victimhood, and that is the most painful, I would say painful yet very enjoyable experience. So it is known as pain addiction. बिकॉज सिर्फ वही जगह है जहां पे आप प्राउड फील कर सकते हो, इसलिए आप वहां से बाहर नहीं निकलना चाहते, ऑल्दो इट इज वेरी वेरी पेनफुल स्टेइंग देयर. सो इट इज लाइक दैट. ओके, आई विल जस्ट गो थ्रू कि क्या कुछ रह तो नहीं गया. ओके, बस आखिरी चीज रह गई है. हमने एक बात की कि दैट थॉट्स, वी आर नॉट आवर थॉट्स, एंड इमोशंस जो है वो इमोशनल स्टेट हमें हमेशा अपना एक पॉजिटिव एम्पावरिंग इमोशंस को फ्यूल करना है. डिसएम्पावरिंग इमोशंस को हमें, इमोशंस एंड थॉट्स को हमें उनसे पुल बैक करना है अपने आप को. एंड आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन द लिस्ट ऑफ द थिंग्स that are limiting you, all the beliefs that are limiting you about yourself. And I want you to make another list, because we talked about joy this day. I want you to make a list which is called as joy list. Which is called as joy list. Anything in this world that gives you joy will come in that list. Anything and everything. भिंडी की सब्जी मुझे पसंद है, जॉय लिस्ट में लिख दो. मुझे घूमना पसंद है, जॉय लिस्ट में लिख दो. इसमें 4-5 चीजें नहीं आएंगी, ये लिस्ट होगी कम से कम 100 चीजों की. सो आई वॉन्ट यू टू कीप ऑन बिल्डिंग दिस लिस्ट. मे बी इस हफ्ते में अगर 100 चीजें पूरी नहीं हो पाए, कम से कम 100 की बोल रही हूँ, ये 500 की भी हो सकती है. सो वेन यू वॉन्ट टू फाइंड आउट योर पैशन, we give this exercise to people कि 500 चीजें लिख के लाओ, फिर उसमें से निकल के आएगा पैशन क्या है. Everyone loves doing at least 500 things. Unless you know what you love doing, what gives you joy, how will you find out where do you need to go? Because joy is the compass. Joy compass है, जहां जहां joy जा रहा है, अगर आप उस एरिया, उस डायरेक्शन में if you are going, you are aligned with your core self. And there lies your passion. So now write down another thing. Emotions are the fuel. Emotions are the fuel. Wherever you give this fuel, that will grow. जहां भी ये फ्यूल डालोगे, अपना इमोशन डालोगे, वो ग्रो होगा.
जहां भी अपना इमोशन डालोगे वो एरिया ग्रो होगा. एंड लेट मी गिव यू एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, लिख लो, ध्यान रखना आज के बाद हमेशा. लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, रूल इज नोन एज 70 सेकेंड रूल. 70 seconds rule. 17 seconds of emotional energy to anything. Your 17 seconds of your emotional fuel or energy to anything, you have shot the rockets of desire in the universe. You have shot the rockets of desire in the universe. अगर आपने 17 सेकेंड किसी भी चीज को इमोशनल एनर्जी, इमोशनल फ्यूल दे दिया, तो एक्चुअली आपने पूरे यूनिवर्स को सिग्नल भेज दिया है दैट आई वांट दिस इन माय लाइफ. 17 सेकेंड. तो एक्चुअली होता क्या है कि 17 सेकेंड जब आपने इस चीज को इमोशनल फ्यूल दिया कि मेरी तो लाइफ बर्बाद है, अब इसको इमोशनल फ्यूल आपने दे दिया 17 सेकेंड, तो वहां यूनिवर्स खड़ा हुआ है और बोल रहा है आपसे, आप भी करो, हाथ करो ऐसे दोनों. तथास्तु. तथास्तु. बोलो तथास्तु सारे. तथास्तु. मेरी लाइफ इज अमेजिंग. तथास्तु. जो भी 17 सेकेंड तक इमोशनल फ्यूल आपने किसी भी चीज को दे दिया, आपने अपने बच्चे को बोल दिया, अरे तू तो, अगर तूने ये नहीं किया ना तो तेरी लाइफ खराब ही है, और 17 सेकेंड इमोशनल फ्यूल दे दो उसको, भगवान कह रहा है तथास्तु. अगर तुम्हारे 70% नंबर नहीं आए तो लाइफ खराब होगी, तथास्तु. अगर अगर तुमने, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई चाइल्ड टू फॉलो द पैशन. एक तरीका ये है किसी चीज को बोलने का, एंड एक तरीका ये है किसी चीज को बोलने का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिकम अ डॉक्टर. ऑन द सरफेस लेवल they are kind of same, right? It is important for my child to follow the his or her passion. Same. It is important for my child to become a doctor or engineer. Same. Surface level पे दोनों same है, लेकिन down below they are both different. एक में आप क्या बात कर रहे हो, सिर्फ डॉक्टर बनने की बात कर रहे हो, उस बच्चे का पैशन है भी या नहीं है, भगवान कह रहा है तथास्तु. और एक तरफ आप बात कर रहे हो फॉलोइंग द पैशन की, तब भी भगवान कह रहा है तथास्तु. सो 70 seconds ऑफ योर इमोशनल फ्यूल टू एनीथिंग shoots the rockets in the universe. And then वही शाहरुख खान वाला, जब भी आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है. तो बस कायनात जुट जाती है मिलाने में. तो आप ये देख लो 17 सेकेंड्स आप किस किस चीज पे ख्याल अपने इन्वेस्ट कर रहे हो या वेस्ट कर रहे हो. आर यू इन्वेस्टिंग दो 70 seconds to build your life up, or are you wasting those 17 seconds to shatter your life away? 17 seconds, only 17 seconds. मुझे पता नहीं ऑल्दो कि कितना सही है कितना गलत है, but this is what law of attraction says. If you believe in law of attraction, if you believe in manifestation, this does work. मोनिका बता सकती है कि how much we have seen manifestation का असर in our lives. How much impact, how much changes we have seen after we have decided कि हाँ manifestation कुछ होता है और हम manifest कर रहे हैं. So yes, everything is getting manifested. I have in my story around 5-6 major stories. Major stories मतलब किताब का एक बड़े पब्लिशर से छपने से लेके बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरीज जो मैं कहती हूँ सिर्फ मैनिफेस्टेशन से हुई. मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया. I had just manifested and they had become a reality. I have actually not put in that effort जितना मुझे रिजल्ट मिला. जैसे हे हाउस ने अगर मेरी किताब पब्लिश की है,
6 महीने में मैंने किताब लिखी है. पीपल स्पेंड देयर एंटायर लाइफ राइटिंग बुक्स. 6 महीने में मैंने जो किताब लिखी है वो अगर हे हाउस वन ऑफ द बेस्ट पब्लिशर्स इन द वर्ल्ड ने पब्लिश की है, दैट मीन्स माय मैनिफेस्टेशन हैज वर्कड हार्डर देन मी. But yes, manifestation has worked. So emotions are fuel. Wherever you give this fuel will grow. If you give your emotions, emotional energy to toxicity in your life, it will grow. अगर आपकी रिलेशनशिप टॉक्सिक है और आप उसी को फ्यूल कर रहे हो, दैट टॉक्सिसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है और उस अच्छाई को आप फ्यूल कर रहे हो, योर रिलेशनशिप विल गो ऑन इम्प्रूविंग. एक और चीज है, सो व्हाट इमोशनल बैटल्स यू आर फाइटिंग. व्हाट इमोशनल बैटल्स यू आर फाइटिंग एवरीडे बेसिस पे. आप कौन से इमोशनल बैटल्स लड़ रहे हो? क्या आप वो इमोशनल बैटल्स वो वाले लड़ रहे हो जो आपको वीक करते हैं, या इमोशनल बैटल्स आप वो लड़ रहे हो जो आपको एम्पावर कर रहे हैं? एंड फॉर दैट मैटर आई वुड से इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल. ये ऐसा सुना आपने सबने होगा कि you need to lose a few battles to win a war. You need to lose a few battles to win a war. So वो इमोशनल बैटल्स में क्या हम वो छोटी छोटी लड़ाइयों में हार जीत देख रहे हैं, या हम एक्चुअली द वॉर ऑफ इवॉल्विंग आवरसेल्व्स जीतना चाहते हैं, वॉर ऑफ अलाइनिंग आवरसेल्व्स जीतना चाहते हैं? ये फोकस हमें देखना है कहाँ लगा है. Nothing has power over me unless I give it power. ये हमने पिछले सेशन में भी बात की थी, शायद उससे पिछले सेशन में, कि मुझे गुस्सा करा के दिखाओ, आज बुरा लगा के दिखाओ, आज मुझे रुला के दिखाओ. Nothing has a power over me unless I give it power. अच्छा, जब हम लोग ये बात करते हैं, कई बारी ईगो की बात करते हैं, कई बारी विक्टिमहुड की बात करते हैं, विक्टरहुड की बात करते हैं, तो पीपल ऑलवेज आस्क कि पता कैसे चलेगा कि हम ईगो में हैं? आपको पता चलता है आप कब ईगो में हो? व्हाट इज वन थिंग यू आर डूइंग that you are doing out of ego, not out of anything else? How do you know this, whether it is ego or whether it is something else? When you do something to get admiration from people around you. Okay, what else? When you do something to get admiration. So okay, yes and a no hai. Why? More important, more pinpointing thing would be when you are taking someone down. When your energy is not about doing something to get admiration, rather your energy is about taking somebody else down to feel elevated. You are in an ego state. नहीं समझ में आया? That I don't do, I said. So Yes. So anybody, if at all, मतलब अगर आप so there is a वो बहुत ही अच्छा सा कोट है, great minds discuss ideas. मुझे पूरा कोट याद नहीं आ रहा, उसमें आखिरी में ordinary people discuss people. So if your conversations are mostly about other people, you are in a state of ego. If your conversations are mostly about bringing other people down, सिर्फ बातों बातों में ही कह रहे वो तो इतना बुरा है, उसने तो ऐसा कर दिया, उसने तो ये कर दिया, अरे फलाना ये ढिमाका, you are in a state of ego. It is not about proving yourself better, it is about proving them worse than you, so that
मेरे अपनी लाइन बड़ी नहीं करना, दूसरे की लाइन छोटी कर दो जिससे मैं अपने आप बड़ी हो जाऊं. दिस इज ईगो. ठीक है. सो दिस इज अ टेस्ट यू कैन टेक वेन एवर यू आर ट्राइंग टू टेक समबडी डाउन. मतलब प्रोडक्टिवली एक प्रोडक्टिव फीडबैक है, और एक जस्ट टेकिंग समबडी डाउन है. बहुत थिन लाइन है. वो थिन लाइन समझना है कि कब हमारा इंटेंशन सिर्फ ये कि तुम्हें बेइज्जत कैसे कर दूं, तुम्हें नीचे कैसे गिरा दूं, तुम्हें तुम्हें मैं छोटा कैसे प्रूव कर दूं. और कभी ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन अ वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग सेटअप, जैसे संगीता जॉब कर रही है 10 लोगों के साथ में, देयर आर टाइम्स व्हेन यू नीड टू pinpoint their mistakes, what they are not doing right. But when intention is मैं तुम्हारी गलती बताऊंगी तो मैं बेहतर साबित होंगी, then it is ego. Otherwise it is not ego. I just want you to understand this. So very thin line. सिर्फ अपने आप से क्वेश्चन करने की बात है. It is not about anybody else understanding this, but me understanding that when I am speaking out of ego and when I am speaking out of concern. And the last thing I want you to understand today is you are, we are our only competition. When you compete with others, compete with yourself. क्या मैं आज से बेहतर कल हूं? ऐसा कहते हैं, when you want to align yourself, a mini you has to die for an aligned you, for an evolved version of you to take birth. So आज जो मैं हूं, जब वो मैं, when I die, my today's self die, then my future self will evolve and align. And that is all with the last sentence. जिस दिन आपको अपने आप को एक्सप्लेन करने की अर्ज खत्म हो जाए, that day you are aligned. The day you let go of the urge to explain yourself, कि ये मैंने क्यों किया, ये मुझे क्यों करना पड़ा. You are aligned. The day your urge to explain yourself dies, you are aligned. कि तब मेरी लाइफ में ये हो रहा था इसीलिए मुझे ये करना पड़ा, आज मेरी लाइफ में ये हो रहा है इसीलिए मुझे ये करना पड़ रहा है. ये अगर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, दैट मीन्स यू नीड अलाइनमेंट. All these tests are to test yourself that where are we going wrong. So first 4 weeks are more about awareness. So we are just creating the awareness. Do we need, where do we need more alignment? अगर relationship में आपको ज्यादा लग रहा है कि मैं explanation दे रही हूँ, there you need alignment. अगर आपको करियर में लग रहा है मैं एक्सप्लेनेशन ज्यादा कर रही हूँ, यू नीड अलाइनमेंट देयर. अगर आपको फाइनेंसेस में लग रहा है आई एम एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ अ बिट टू मच, यू नीड अलाइनमेंट देयर. अगर आपको हेल्थ में लग रहा है कि अरे पता है मैं एक्सरसाइज क्यों नहीं कर पाती क्योंकि मेरा लिगामेंट टूटा हुआ है, मुझे पैर में वो स्वेलिंग आ जाती है, मैं योगा करती हूँ, तो यू नीड अलाइनमेंट देयर. These are all the reasons, these are all the areas where you need alignment. And this example I'm giving and I'm laughing because this is my area of alignment. I need to work on this area because very recently I started doing yoga and my knee, because my ligaments were broken, उसमें swelling आ गई and everything was haywire. तो मैं नहीं कर रही हूँ yoga. And I'm explaining this to everybody why I'm not. I need alignment there. Maybe not yoga, maybe a walk, maybe a swimming, maybe a dance, maybe anything. I don't know what. But you need to take a chance to make a different choice to change anything, right? So now I will take a chance to change, to make a different choice, maybe not yoga, to make this change. So I ओ मैं ये अपने लिए प्रतिज्ञा कर रही हूँ, प्रण कर रही हूँ अब कि हेल्थ के एरिया में इस हफ्ते अब मुझे आई नीड टू टेक अ चांस टू मेक अ डिफरेंट चॉइस. आई विल ट्राई.
So that's it for today. Tell me if you have any questions. Tell me if you have any feedback. Anything. I think एक बार फटाफट. हाँ. in this week, when we have the one-to-one call, I'm just expecting वो जो negative list बनाई थी वो one-to-one discuss करके उसमें Yes. से कैसे निकलना है वो सोचना चाहिए, I think. Definitely, definitely. वो जो negative Because list maybe बनाई the है, intensity has decreased with this workshop, but finding answers will need a little bit more of Yes. hand holding. right. We will do that. Last time I'm so sorry for last week I was not able to take those one-on-one calls.